آج تقریر کا موضوع اختیارات حسین قرار پایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلی تقریر جو اس تقریر میں موجود تھے حاصل کیا، اس میں ہم نے ایک حسین کا اختیار بیان کیا تھا کہ اللہ مدد نہیں کر رہا تھا مریم کی، تو حسین نے مریم کو کربلا بنا دیا۔ کچھ لوگوں کا سوال تھا کہ یہ کیسا اختیار ہے کہ اللہ نے مدد نہیں کری تو حسین نے مدد کر دی۔ ہم نے قرآن سے، ہم نے کتاب سے حوالہ دیا، ہم نے بتایا تو یہی وجہ ہے۔ اب تو آج بات ہی اختیارات حسین پر ہوگی۔ تو اختیارات حسین کیا ہے کہ 3 شعبان کو حسین اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں، اور صبح سے ملائکہ کی صف زمین پر نازل ہوئی۔ رسول اللہ کے گھر تشریف لے کر آتے ہیں، رسول اللہ کو سلام پیش کرتے ہیں، بچے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، سب واپس چلی جاتی ہے، دوسری سب آتی ہے، پھر سب چلی جاتی ہے، کہ وہ سب آ رہی ہے جو عبادت خدا بندی کرتی ہے، آج حسین کے لیے آ رہی ہے۔ صبح سے سب کے سب آ رہی ہے کہ ایک دم دیکھا ہی گیا کہ جبریل امین 1000 لشکر کے ساتھ، اپنے چاو حشم کے ساتھ، اپنی جلال کے ساتھ زمین پر نازل ہونے لگے۔ جبریل زمین نازل ہونے لگے، دیکھتے کیا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک الوہی ہے، اس میں ایک فرشتہ اللہ کے عذاب میں، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوا ہے۔ دیکھتے ہیں جبریل امین آگے بڑھ جاتا ہے، کہتا ہے، وہ فرشتہ کہتا ہے، آخری جبریل ادھر تو آئیے، آپ کہیں گے آپ فطرت کیوں سنا رہے ہیں؟ آج تک فطرت سنا ہے، آج ہم آپ کو فطرت سمجھائیں گے، آج ہم آپ کو اختیارات حسین سمجھائیں گے۔ آخری جبریل ادھر آئیے، آخری جبریل ادھر آئیے۔ جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے، کہتا ہے کہتے ہیں کیا بات ہے۔ فطرت کہتا ہے کہ آج کیا قیامت کا دن، محشر کا دن آ گیا؟ جبریل امین کہتا ہے نہیں تو آج محشر کا دن تو نہیں آیا۔ کہا تو میں صبح سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ملائکہ کی فوج ڈاکٹر زمین پر نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ روز محشر جس دن تم دیکھو گے آسمان کے دریچے کھل جائیں اور روز محشر ہوگا، آسمان سے فرشتے زمین کی جانب جاتے ہوئے نظر آئے، وہ پھر محشر کا دن ہوگا۔ صبح سے دیکھ رہا ہوں ملائکہ کی سب زمین پر جا رہی ہے۔ تو کہتا ہے کہ آج شاید آج محشر کا دن ہے، کہتے ہیں نہیں، آج نبی آخر کے گھر حسین کی آمد ہوئی ہے، حسین کی مبارکباد دینے جا رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے بھی ساتھ لے چلے، مجھے بھی ساتھ لے چلے۔ اب میرا سوال کیا ہے، جب اللہ نے منع کر دیا تھا، اللہ نے کہہ دیا تھا کہ تیرا فیصلہ روز محشر ہوگا، تو جبریل امین سے سوال کیوں رہا ہے؟ جبریل امین لے کر کیوں آ رہا ہے؟ اب آپ سے یہ سوال ہے کہ وہ جب زمین پر آیا تو کیا اللہ کو علم نہ تھا؟ اگر آپ کے کہیں گے کہ اللہ جانتا نہ تھا تو آپ کفر میں پڑ جائیں گے کہ وہ عالم الغیب ہے، وہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے۔ بس جبریل امین نے اسے لیا اور زمین پر نازل ہو گئے۔ 1000 ملائکہ ساتھ میں موجود ہے۔ جیسے ہی دروازے پر گئے، جیسے ہی دروازے پر گئے، جبریل امین ہو گئے، رک کر کھل کر بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں تو رک جا، تو آتی ہے، یہ معصوم کا در ہے، جہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ معصوم کے در پر اس نے قبول تو ضروری ہے کہ امت آتی ہے، پہلے پاک ہو جاؤ پھر در میں داخل ہونا۔ اندر گئے، جا کر اجازت دی، اجازت ملی، جیسے ہی اجازت ملی پھر اس اندر آیا، رسول اللہ نے کہا بلا لو، پھر اندر آ گیا، آ کر سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو بچے کی آمد کی مبارکباد ہے۔ پھر کہتا ہے یا رسول اللہ کیا اس بچے کے
सदके मेरी तौबा कबूल हो जाएगी। क्या इस बच्चे के जरिए मैं शुफायाब हो जाऊंगा? रसूल अल्लाह कहते हैं जाकर वो झूला रखा है उससे अपने परो बाजू को मस कर ले। सुबह से हुसैन जब बेकरार होते थे रसूल हुसैन को गोद में उठा लेते थे, कभी सीने से लगाते थे, फिर वो झूले में लिटा देते थे। ये वो वक्त था कि जब हुसैन रसूल की गोद में थे। ये वो वक्त था जब हुसैन रसूल की गोद में थे और झूला खाली था। अरे क्या करे जिसका करार चला गया हो, वो बेकरार था, झूला हिल रहा था, जैसे ही गया अपने परों को बस किया। रसूल ने क्यों नहीं कहा कि हुसैन से मत कर ले, क्योंकि हुसैन हुसैन जानते थे कि अगर फिरौन अपने आप को मंबाए नूर से मत करेगा तो फना हो जाएगा। कहा झूले से मत कर ले, झूले से मत कर। मैंने इतनी कमी क्यों बांधी? झूले से मत किया, फिरौन से झूले से मत किया, उसको परो बाजू वापस मिले। ये वो परो बाजू न थे जो अल्लाह ने अदा किए थे, ये वो पर बाजू है जो हुसैन ने अदा किए थे। जैसे ही परो बाजू वापस मिले फिरौन ने एक बार अपने टूटे हुए बाजू की तरफ देखा, फिर अदाई बाजू की तरफ देखा, फिर टूटे बाजू की तरफ देखा, फिर अदाई बाजू की तरफ देखा। रसूल अल्लाह ने कहा क्या देखता है, क्या देखता है? कहता है मैं ये देखता हूँ, इजाज़त है हुसैन पर जुमला ले लो, मैं ये देखता हूँ एक अल्लाह की अता है, एक हुसैन की अता है। कहता है रसूल ये बता क्या तूने इन दोनों में कोई फर्क पाया? कहता है कोई फर्क न पाता हूँ, कोई फर्क नहीं पाया। जैसी अल्लाह की अता है वैसी हुसैन की अता है। ये कहते हुए फिरौन से परवाज़ भरी, अपने परों को खोला, कहता हुआ गया मैं बख्शा हुआ घराना हुसैन का हूँ, मैं बख्शा हुआ हुसैन का हूँ। अब अल्लाह ने नहीं कहा कि ढलके वाला हो गया, इसके परों बाजू को गिरा कर दो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अब अल्लाह ने नहीं कहा कि तर्के औला हो गया, इसके परों बाजू को कटा कर दिया जाए। आप कहेंगे कि ये क्या मिंबर पर बैठकर शिर्क और खुलू की बातें करती है? बच्चे को थोड़ा संभाले, इसको यहाँ पर बिठा ले। क्या आप कहेंगे कि ये क्या शिर्क और खुलू की बातें मिंबर पर हो रही है? भाई हम मिंबर पर शिर्क और खुलू की बातें नहीं कर रहे, हम आईने तौहीद सिखा रहे हैं, हम इमामत सिखा रहे हैं। बिहारुल अनवार में इमाम ज़माना का खत मौजूद है। इमाम से पूछा गया ये बताइए कि हुसैन ने अल्लाह के लिए अपनी कुल कायनात लुटा दी, तो अल्लाह ने हुसैन को क्या अता किया? इमाम ज़माना इरशाद फरमाते हैं चूंकि हुसैन ने अल्लाह के लिए अपनी कुल कायनात लुटा दी, तो इसलिए अल्लाह ने हुसैन को अपनी कुल कायनात का इख्तियार दे दिया। दुरूद भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसलिए अल्लाह ने हुसैन को अपनी कुल कायनात का इख्तियार दे दिया। यही इख्तियार तो था अल्लाह का इख्तियार है औलाद देना, अल्लाह का इख्तियार है औलाद देना। आ रहा है कोई बोल रहा है मुझे बेटे दे दीजिए, तो ये इख्तियार परवरदिगारे आलम का था। आज तक आपने बहुत ज़ाकिरीन से सुना, आज वो अजीम नुक्ता देने जा रहा हूँ जो आपने शायद ही नहीं सुना होगा। कहा मैं बेटे लेने आया हूँ, हुसैन मुझे बेटे अता कर दे, रसूल हुसैन मुझे बेटे अता कर दे। हुसैन ने रसूल की तरफ देखा, रसूल ने आसमान की तरफ देखा, आसमान से पर्दे हटे, आसमान से नबी ने देखा कि औलाद नसीब में नहीं है। देखा नबी ने कहा औलाद नसीब में नहीं है। कहा नबी ने नहीं कहा अरे सूरह
वही न करे। नबी जो कुछ कहता है वो वही इलाही के तहत कहता है। तो आप अल्लाह अल्लाह का नाम था, जाहिर है हुसैन रसूल से हम कलाम थे, लेकिन अल्लाह हम कलाम था हुसैन से। हुसैन कह रहा है ए परवरदिगारे आलम मैंने अदा कर दिया। परवरदिगारे आलम कह रहा है कि इसके नसीब में नहीं है। हुसैन कह रहा है कि परवरदिगारे आलम हम कह रहे हैं तो अल्लाह नाम उठा रहा है हुसैन के। कहा अच्छा हुसैन तुम कह रहे हो तो हमने तकदीर को बदल दिया। अजीम काम करना है हुसैन इब्ने अली ने। अब इस पर हैरत न करे, ये उसकी शान है कि कभी रसूल से अली के लहजे में बात करे, कभी हुसैन से रसूल के लहजे में बात करे। बेगम मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर एक जुमला मासूम ने इरशाद फरमाया, जब बेटे अता हो गए तो इरशाद फरमाया कि अगर राहिब साहब बेटों के पास न रुकता तो कायनात में कयामत तक एक तरफ नस्ले आदम होगी, एक तरफ नस्ले राहिब होगी। तो हुसैन क्या कहना चाह रहे हैं? हुसैन बताना चाह रहे हैं अगर रोका न जाता तो एक तरफ अल्लाह की अता करता नस्ल होगी, एक तरफ मेरी अता करता नस्ल होगी, बेइज्जत मेरी अता करता नस्ल होगी। बस इतनी ही तो बात थी, इतनी सी बात थी। रात में हुसैन और हसन बीवी से कह रहे हैं कि वालदा गिरामी कल ईद है, हमारे कपड़े गाने कहीं मौजूद लुट्टे की तरफ आपको लेकर आ रहा हूँ। मजलिस महफिल अपने इख्तिताम पे पहुंच चुकी है कि कल ईद है, हमारे कपड़े कहाँ है? बीबी ने इरशाद फरमाया, बीबी ने कहा कल अब तुम्हारे कपड़े दर्जी लेकर आएगा। हसनैन सो गए। अरे अल्लाह नाज उठा रहा है, अगर ये मालिक जन्नत है तो वो मालिकाए जन्नत है, वो खातूने जन्नत है। कल दर्जी कपड़े लेकर आएगा। बच्चे सो गए। अगला दिन नबूदार हुआ, बीबी के पास आए, कहा अम्मा हमारे कपड़े किधर है? कहा दर्जी लेकर आया था, कपड़े अल्लाह ने भेजे थे, कपड़े अल्लाह ने भेजे थे, इस रीत से सिए थे। कपड़े आए थे, जानते समय रंग होता है जन्नत का लिबास। कपड़े आए थे, जैसे ही हुसैन ने देखा कहा अम्मा ये सफेद रंग हम तो नहीं पहनेंगे। भाई नफरे कौन उठा रहा है, नाज कौन उठा रहा है? सफेद रंग हम तो नहीं पहनेंगे, ये कहना था। रसूल अल्लाह तशरीफ लेकर आए, बच्चे के माथे पर शिकल देखी, जैसे ही शिकल देखी कहा हुसैन तुम परेशान हो? कहा नाना जान ये सफेद रंग है, बच्चे रंगीन कपड़े पहने हैं। नाना हमें भी रंगीन कपड़ा पहनना है, हमें भी रंगीन कपड़ा पहनना है। बोला गया कि क्या रंग चाहिए? जिब्रील अमीन नाज़िल हुए, कहा हसन इब्ने अली है हम हरा रंग पहनना चाहेंगे। हुसैन ने कहा हम लाल रंग पहनना चाहेंगे। कपड़े पहन लिए, पहनने के बाद और कपड़े अता हुए, पहनने के बाद पहुंचे हैं मस्जिद में और कहते हैं हसन और हुसैन कहते हैं नाना सबके पास सवारी मौजूद है, नाना हमारी सवारी कहाँ है? तो रसूल अली से कह सकते थे बच्चों के लिए सवारी ले आओ, बच्चों के लिए सवारी ले आओ। तो रसूल ने नहीं कहा, क्योंकि रसूल जानते हैं कि ये वो बच्चे हैं जिनके कपड़े जन्नत से आ रहे हैं, तो दुनिया की सवारी पर सफर नहीं करेंगे। रसूल ने कहा हम तुम्हारी सवारी बन जाते हैं। रसूल ऊंट बन गए। मस्जिद नबवी में असहाब मौजूद हैं, असहाब मौजूद हैं। रसूल ने मस्जिद नबवी में चक्कर काटना शुरू किए, चक्कर काटना शुरू किए। हुसैन खामोश है, कभी पूछते हैं हुसैन खामोश क्यों? कहा नाना जान हमारी सवारी बोलती नहीं है। कहा अच्छा बोलने वाली सवारी चाहिए है। आपने देखा है कि ऊंट अल-अफो आवाज निकालता है, नबी ने अल-अफो की आवाज निकालना शुरू करी। 7 बार नबी ने अल-अफो कहा। इधर से हुक्मे परवरदिगारे आलम हुआ कि जिब्रील जल्दी नीचे जाइए, जाकर मेरे हबीब से कहिए कि अब अल-अफो न कहिएगा। अगर आपने अल-अफो कहा तो हमें नारे जहन्नुम बुझाना पड़ जाएगा। तो भाई अच्छी बात थी ना, नारे जहन्नुम बुझ जाता। मीठे मीठे प्यारे प्यारे इस्लामी भाई, हरे हरे भाई सब जन्नत में चले जाते, नारे जहन्नुम बुझ जाता। तो अजब नहीं है आवाज़ परवरदिगारे आलम आए कि मैं अली के
बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं बतूल के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं हसन के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं हुसैन के दुश्मन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब आप इतने हैरत से क्या देख रहे हैं? अरे रसूल के अलाफों कहने पर नारे जहन्नुम तोड़ी बुझती है, हम अज़ादारों से भी नारे जहन्नुम बुझती है। रसूल की हदीस है कि रोज़ा महशर जब बर्पा होगा, अली वाले पूरे सिरात से गुजर रहे होंगे तो आवाज़े परवरदिगारे आलम आएगी, आवाज़े परवरदिगारे आलम आएगी। जहन्नुम पुकार पुकार कर कहेगी जल्दी आगे बढ़ो मैं बुझे जाती हूँ, जल्दी आगे बढ़ो मैं बुझे जाती हूँ। क्यों कहेगी, क्यों कहेगी, क्यों कहेगी जहन्नुम? उसकी वजह यह है कि 3 वादे हुसैन से अल्लाह ने लिए थे और 3 वादे हुसैन ने अल्लाह से किए थे। वो वादे हुसैन ने वफा कर दिए। रोज़े आशूर हुसैन इश्क की मंजिल पर मौजूद है। 2 दफा इश्क का ऐलान हुआ, एक रसूल ने, एक अल्लाह ने रसूल से किया, आर्शे मुअल्ला पर बुलाया। एक अल्लाह, एक हुसैन ने अल्लाह से किया, कहा तू अब आ, तेरा नूर करबला में आए। अब इसमें हैरत नहीं कीजिएगा, जो अपनी तजल्ली मूसा को कोहे तूर पर दिखा सकता है, वो अपनी तजल्ली हुसैन को भी दिखा सकता है। इधर नूर की किरणें करबला की जमीन पर आई, आवाज आई। एक आयत आपने सुनी है और मंजिल मसाइल पर सुनी है, लेकिन करबला सिर्फ मसाइल का नाम नहीं है, करबला में मसाइल छुपे हुए हैं। एक आयत है कि या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्दिया। कहा परवरदिगारे आलम है या अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना इरजई इला रब्बिक राज़ियतन मर्दिया। ऐ मुतमइन नफ्स वाली रूह, ऐ कामिल नफ्स वाली रूह, मैं तुझसे मुतमइन हो गया, तू मेरी तरफ, अपने रब की तरफ लौट आ और मेरी जन्नत में दाखिल हो जा, मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। अल्लाह ने कहा मैं तुझसे राजी हो गया। अब दुनिया ये कह रही है ये भी रज़ी अल्लाह है, वो भी रज़ी अल्लाह है, वो भी रज़ी अल्लाह है। अल्लाह इनसे भी राजी हो जा, उनसे भी राजी हो जा, उनसे भी राजी हो जा। लेकिन जिसे अल्लाह कहे तुम मुझसे राजी हो जा, उसे हुसैन कहता है। हुसैन कहते हैं, हुसैन कहते हैं। यही वजह थी, यही वजह थी। 2 वादे किए गए कि कौन सी कौम होगी का हल करेंगे, कौम जिक्र करेंगे। तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जिक्र करो, एक कौम होगी, कौम को हल कर दिया, जिक्र कर रहा है परवरदिगारे आलम। अब तीसरा वादा ये था कि जन्नत में कैसे दाखिल होगी। बीबी ने वादा किया कि हर एक चाहने वाले लोगों की बात होगी। तो रोज़े महशर जहन्नुम पुकार पुकार कर कहेगी जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी आगे बढ़ो, मैं बुझे जाती हूँ, मैं बुझे जाती हूँ। उसकी वजह यह है कि अल्लाह चाहता यह है, अल्लाह चाहता यह है जितनी जल्दी हुसैन ने वादा वफा कर दिया, उतनी जल्दी मैं अपना वादा वफा कर दूं। इसीलिए शायर ने वो कहा अगर बयान शहादत हुसैन की तफसीर हो जाए, मुसलमानों का किबला रोज़ाए शब्बीर हो जाए। नारा हैदरी या परवरदिगारे आलम, हमारी इस कलीम सी बात जो हमारी नज़र में, हम लोगों की नज़र में करीब इबादत है, तेरी नज़र में कसीद इबादत है, इसे अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमा। आमीन। या परवरदिगारे आलम, इस बानियाने महफिल के घर पर खास साया इनायत फरमा। परवरदिगारे आलम, जो भी परेशान हाल हैं, बे औलाद हैं, उनकी परेशानियों को दूर फरमा, उन्हें औलाद हरीना इनायत फरमा। या परवरदिगारे आलम, जो मखलूस हैं उनके कर्ज को खैर से अदा फरमा। या परवरदिगारे आलम, हमारे मदरसा शाम या की हिफाजत फरमा। परवरदिगारे आलम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवाम अंसार में शामिल फरमा। रोज़े महशर मोहम्मद व आले मोहम्मद की शफ़ाअत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंtas समीउल अलीम। मातम हुसैन।